There we go. Hopefully it's visible, guys. Yes. Okay, thank you. Alright, so now this is what we were doing yesterday. We'll start over, but हम एक overview कर लेते हैं. So about the minimax algorithm, so actually not minimax, about the alpha beta pruning algorithm. So we had started with this one and हमने क्या कहा था कि initially alpha and beta के scores are minus infinity and infinity respectively because जब भी हम alpha का score देख रहे होंगे we'll be checking कि is it basically when I'm deciding so I'm looking at a greater score तो anything would be greater than minus infinity. That's why हमने alpha को minus infinity रखा होगा. And similarly जब हम beta के लिए scores update करना चाह रहे होंगे तो we'll be comparing it with infinity and we'll also be checking if it's smaller than infinity or not. तो almost everything would be smaller than infinity. तो यहाँ पर भी हमारे पास score update जब भी करना होगा beta का तो we'll be doing that. Min and max layers definitely are relevant here. uh, it's the same as minimax algorithms. एक maximum की layer होगी, एक minimum की layer होगी. Alternatively हमारे पास layers काम कर रही होंगी. And one more thing was कि जब हम layers के अंदर alpha and beta की values update करें तो max layer के अंदर हम सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू को अपडेट कर रहे होंगे और मिनिमम लेयर के अंदर हम हमेशा बीटा की वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे होंगे. That was the basic gist of it, but there was one more condition कि you had to keep validating कि हर नोड पर अल्फ़ा and बीटा के बीच में there should not be any relationship like this कि alpha की value is greater than equals to beta. So if it does end up being like that तो that would mean कि उसके आगे जो भी exist कर रहा है उसको आप prune कर दोगे. That means कि let's say at this point for some reason alpha and beta were equal to each other, so you would get rid of this whole tree from the side. But वो हमें अभी नहीं करना. So as we solve this दोबारा से तो we'll have a look कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे कैसे करनी है. तो I will be getting rid of the stuff जो कि हमने already कर लिया था and हम restart करते हैं इसको. So the stuff. Alright, there we go. So सारी चीज़ें remove कर दी हैं मैंने. So we can start over. Um, and इसको हम रहने देते हैं for now because we did this later. Okay, there we go. So let's start and see कि किस तरह से काम हो रहा था. Also initially यहाँ पर हमारे पास ये values नहीं होंगी. Of course हमने बाद में fill out करी होंगी इन values को. So let me just find the pencil if I can find it. Why can't I find it? Um, wait, what? I'm so confused. Oh, there we go. Take it. So, let's go. So DFS लग रहा होगा. DFS लग रहा है तो that means कि we are going left hand side. Left hand side जा रहे हैं तो we're initially we'll just be copying the scores from the parent node to the child node. तो यहाँ से हमने माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी को कॉपी करके फर्स्ट चाइल्ड नोड के पास दे दिया. सेम स्कोर्स सेकंड चाइल्ड नोड के पास चले जाएंगे. सेम स्कोर्स थर्ड चाइल्ड नोड के पास चले जाएंगे. एंड नाउ I have to have a look at
कि इसकी चाइल्ड नोड्स कौन कौन सी हैं. सो फर्स्ट चाइल्ड नोड हैज़ 10 and this layer was the minimization layer. So you'll be checking k is 10 less than infinity or not, and if it is, so you'll update the score from infinity to 10. So that is what we did. Then you'll go back to the parent, and then you'll go to the child, and then you'll see k is 5 less than 10 or not. And if it is, so you'll update the score from 10 to 5. तो हमारे पास बीटा का स्कोर क्या हो गया 5 एंड अल्फा इज स्टिल माइनस इन्फिनिटी बिकॉज मिनिमम के अंदर हम अल्फा को मॉडिफाई नहीं कर रहे होंगे. So when you go back to the max layer now, तो now I have to check कि माइनस इन्फिनिटी से ज़्यादा कोई और वैल्यू है यहाँ पर या नहीं ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड जहाँ से हम वापस आए हैं. तो we had 5 जो कि was greater than minus infinity, so we updated this to 5, right? And beta को हम अभी modify नहीं कर सकते because we are on the max layer. ठीक है. So then you go to the second child and यहाँ पर a was now 5 and b was infinity because हम पेरेंट से स्कोर को कॉपी कर रहे हैं. सो पेरेंट के पास स्कोर्स थे 5 and infinity, तो वह हमने कॉपी कर दिए थे यहाँ पर. then again now this is on the main layer, so you're checking कि is 7 less than infinity or not, which it was, तो हम इसको अपडेट करके 7 कर देंगे. And then you go back, then you go to the other node, then you check is 11 less than infinity or not. Oh, sorry, is 11 less than 7 or not? So 11 is not less than 7, तो ये update नहीं होगा further. So when you're going back to the max node, sorry, max layer, तो max layer के अंदर now you're checking के between 5 and 7, which is the higher value. So it is 7, so you'll cross out 5, you'll write 7. So 7 is now the updated value for this one. And again beta यहाँ पर update नहीं हो रहा होगा. तो you'll go back now since यहाँ से हमारे पास सारा कुछ explore हो चुका है. And now you're gonna be having a look min layer पर हैं, तो I have to modify the value for beta. So beta की value modify करनी है. So yeah, you have the only option that you have is between 7 and positive infinity. So you'll say okay, you'll update this to 7. ठीक है. Now एक child explore हो चुका है पूरा, दूसरा child नहीं हुआ, तो you'll go to the second one. Depth first है, right? तो now since you're here, तो B के पास score क्या है 7 है. So actually let me write 7 over here and इसको ज़रा हम copy कर लेते हैं. So this is what we have right now. इसके पास भी infinity and 7 score copy हो जाएगा when it goes downwards. ठीक है. Again now it'll be looking at its child nodes. So ये child nodes के अंदर we have 12 and we have 8. हमें minimize करना है beta को, right? तो 12 is not less than 7, कुछ भी नहीं होगा. 8 is not less than 7, again कुछ भी नहीं होगा. सही है. So यहाँ पर बीटा के अंदर कोई changes नहीं हुए. तो you'll go back up. ठीक है. वापस ऊपर गए. तो now we have the choice between 7 and infinity and ये max layer है. तो max layer के अंदर you'll be updating infinity to 7. So it was minus infinity, मैंने infinity लिखा हुआ है. Hang on, मैं इसको सही कर देती हूँ. There we go. ठीक है. So minus infinity को हमने update करके 7 कर दिया. And next iteration I have this. अब यहाँ पर a alpha क्या होगा, beta क्या होगा, तो पेरेंट से कॉपी हो रहे हैं, पेरेंट से कॉपी हो रहे हैं. तो हमारे पास
alpha is 7, beta is 7. तो now this is something जो कि हम लोगों ने अभी तक दोबारा से बार बार नहीं चेक करके देखी थी, तो अब हम ज़रा चेक करने जा रहे होंगे इसको. And oh wait, actually we had to perform the check before we got here. I made a little mistake. So यहाँ पर ये अल्फ़ा 7 था, बीटा 7 था, वो एक्चुअली यहाँ पर आएगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर भी अल्फ़ा 7 था एंड बीटा 7 था, राइट. So our cut off condition was कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में इस तरह कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम प्रून कर देंगे आगे अपने ट्री को. तो let me just undo this that I did. तो since यहाँ पर अल्फ़ा is greater than equals to बीटा है, so it is, तो ये वाला ट्री प्रून हो जाएगा. सो इस ट्री को हम फर्दर सर्च नहीं करेंगे. तो विल स्टॉप ओवर हेयर एंड व्हाट विल हैपन इज के नाउ सिंस अल्फा एंड बीटा के दोनों के स्कोर्स आर द सेम 7 है, वी आर गोइंग बैक एंड नाउ सिंस हम मेन लेयर पर हैं तो क्या चीज़ अपडेट हो रही होगी. अगेन बेटा की वैल्यू अपडेट हो रही होगी. सो बेटा की वैल्यू अपडेट होकर कुछ भी नहीं होगी बिकॉज द ऑप्शन वी हैव इज 7 एंड 7. तो 7 एंड 7 के बीच में इट ऑलवेज पिक 7, सो इट्स गोना बी द सेम वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर. अल्फा की वैल्यू इज स्टिल माइनस इन्फिनिटी. तो एक साइड ऑफ द ट्री इज डन, द अदर साइड इज लेफ्ट. तो अब यहाँ से व्हेन यू आर गोइंग बैक, नाउ अगेन हमारे पास ऑप्शन क्या है इस 7 एंड सिंस हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आई एम पिकिंग बिटवीन 7 एंड माइनस इन्फिनिटी. तो आई विल पिक 7. तो हमारे पास नाउ a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इक्वल्स टू इन्फिनिटी. तो दैट इज़ द स्कोर दैट वी हैव राइट नाउ. एंड अब मुझे राइट हैंड साइड ऑफ द ट्री एक्सप्लोर करना है. तो I'll pause here for a sec. So if you have any questions, पूछ लीजिएगा. I'll be writing the score over here जो कि हमें अभी utilize करना है. So any questions, guys? तो मैम इधर हर नोट पे अल्फा और बीटा की वैल्यू चेंज हो जा रही है हमेशा इन्फिनिटी को देख के. Yes. No So data infinity. yeah. So initial values are gonna be infinite, but like afterwards वो change हो रही होंगी based on कौन से layer पर हैं. तो जब हम मेन लेयर पर होंगे तो हम बीटा को अपडेट कर रहे होंगे एंड जब हम मैक्स लेयर पर होंगे तो हम अल्फ़ा को अपडेट कर रहे होंगे. एंड वाइल वी आर डूइंग दैट हम एक चेक साथ में लगा रहे होंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का रिलेशनशिप तो नहीं आ रहा. तो अगर आ रहा होगा तो हम उसके आगे वाली नोट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे बेसिकली. मिस अल्फा की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ बीटा पे एंड वाइस वर्सा. ओके सो जब भी मुझे वैल्यू अपडेट करनी है फॉर अल्फ़ा और बीटा आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट टू चाइल्ड नोड के अंदर जो भी नंबर्स मुझे मिल रहे हैं. तो जब मैं लेट्स से इस अल्फ़ा को कंसिडर कर रही हूँ तो आई एम चेकिंग कि इसके चाइल्ड के पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं. तो लाइक इसके चाइल्ड के पास एक ये वैल्यू थी 5 एंड यहाँ पर भी 5 एंड 7 हमारे पास दो वैल्यूज़ थी. तो between 5 and 7 I have to decide कि max कौन सी वैल्यू है टेक्निकली, राइट. सो इनिशियली जब वो लेफ्ट हैंड साइड से आया था तो हमने 5 यहाँ पर लिखा हुआ था बिकॉज उसको ओनली 5 का ही पता था. बट जब उसने राइट हैंड साइड एक्सप्लोर की तो उसको एक और बड़ी वैल्यू मिल गई थी, दैट वाज 7. तो उसने इंस्टेड ऑफ 5 देन यहाँ पर अल्फा को अपडेट करके 7 कर दिया था. एंड सिमिलरली जब हम मिन के पास जा रहे होंगे तो नाउ इनिशियली उसके पास जस्ट 7 है टू वर्क विद, तो उसने यहाँ पर 7 लिख दिया, राइट. द एल्गोरिथम इज डूइंग दैट. एंड देन राइट साइड पर अगर उसे 7 के अलावा कुछ और मिल जाता दैट वाज स्मॉलर देन 7 तो इट वुड अपडेट दिस 7 टू दैट स्मॉलर वैल्यू.
बट बाय चांस हमें यहाँ पर दोनों जगहों से 7 मिल रहा है, तो इट कीप इट एज 7। एंड जब हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं फर्स्ट लेयर को, तो अभी मुझे यहाँ से सिर्फ 7 मिल रहा है, एंड यहाँ पर अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी, तो आई हैव टू पिक द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन -7 एंड सॉरी 7 एंड माइनस इन्फिनिटी, तो इट्स गोना पिक 7, एंड उसने यहाँ पर 7 लिख दिया है। सो नाउ ऑन राइट हैंड साइड ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं है कि और क्या चीज़ें हैं, तो आई हैव नो आइडिया कि बीटा के अंदर कोई और नंबर मिलेगा मुझे या नहीं मिलेगा, दैट इज़ ग्रेटर। तो अगर मुझे कोई और ग्रेटर नंबर मिल जाएगा तो इट विल अपडेट दिस 7 टू दैट नंबर, बट अभी वी डोंट नो until we solve for the rest of the thing. Okay. Any else? So anyone else? Any questions? Okay, so now since हम इस साइड पे आ गए, तो I've just copied the score for alpha and beta, and वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। A equals alpha equals 7, beta is equals to infinity, scores copy कर लिए हैं। And once more यहाँ से I'll copy this, I'll add this over here, ठीक है, because हम अभी oops लेफ्ट साइड पर जा रहे होंगे, राइट? तो ये स्कोर्स हमारे पास करंटली हैं। सो इसके चाइल्ड के पास जाएंगे, आई डोंट नो द स्कोर्स, अगेन इसके चाइल्ड के पास जाएंगे, आई डोंट नो द स्कोर्स now, but I can find out the scores for beta over here, right? So I have to pick a smaller value between infinity and 5, so I'll pick 5. Then I have to pick a smaller value between 5 and 12, right? So between 5 and 12, wait, actually no, I don't have to do that, because alpha is greater than equals to 5 right now, right? तो यहाँ पर दोबारा से हमारे पास वो वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। सो दिस इज ट्रू, तो दिस वन गेट्स प्रूवन, मुझे इसको चेक नहीं करना, ठीक है? तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा, तो यूल लीव बीटा एज 5 एंड यूल गो अपवर्ड्स, ठीक है? तो अब वापस हम जा रहे हैं, तो अल्फा का स्कोर अपडेट हो सकता है इफ़ आई फाउंड द बिगर वैल्यू later in the tree, लेकिन मुझे 7 मिला था एंड मुझे 5 मिला था, none of which are greater than 7, तो it will remain 7, यहाँ पर कोई changes नहीं होंगी, ठीक है? Now you're gonna go to the right side of this child, right side पर जाएंगे, and again I have the score 7 and infinity, so that is my score, and मुझे उसको देखना है कि between infinity and 11 which one is bigger, 11 sorry smaller, तो 11 is smaller, so you'll write 11, then you'll be checking is 7 greater than equals to 11, it's not, तो that means मैं next child को check कर सकती हूँ, उसको next child को check करने जा रहे हैं 12, is 12 greater than equals to 11? Yes, it is greater than 11, and since हम min को update कर रहे हैं, तो min के लिए I just have to validate कि जो भी minimum value है उसको pick करना है, तो minimum मेरे पास 11 है, 12 is not greater than 11, तो this won't get updated, तो मेरे पास इस node के लिए alpha is 7, beta is now 11. Now you're going back to the previous node पर जा रहे हैं, तो अगेन अब यहाँ पर अल्फ़ा को अपडेट कर सकते हैं बिकॉज ये मैक्सिमाइजेशन वाली लेयर है, तो अल्फ़ा को अपडेट मुझे अगर करना है तो अगेन आई हैव टू लुक एट ऑल द वैल्यूज़ दैट आई हैव, तो आई हैव 7, I have 7, I have 11, so between 7, 7 and 11 I have to pick the biggest value, so I'll pick 11, तो जो 7 था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, and instead of 7 we now have 11, so when you go back again, now I have 11 as my biggest value, so I'll have to update this 7 to 11 as well,
ठीक है, so now we have oh sorry my bad, ये मिनिमाइजेशन वाली लेयर है, so इन्फिनिटी को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद 11. There we go. So next we have alpha equals to 7, beta equals to 11, and अभी मुझे दूसरी side of the tree का नहीं पता, तो I need to fix that as well. So now let me just write this one more time for this side of the tree. So we had alpha equals to 7 and beta equals to 11, right? तो अब मुझे सेम काम करना है for this side of the tree. तो these are the values that we have, and हमें अब इसको अपडेट करना है. तो I'll have a look at the child for this one. For the minimization layer I'll be checking कि बीटा जो मेरा 11 है उससे छोटी values मुझे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं. So 11 is greater than 9, तो you will be updating that. So 11 को हम replace कर देंगे with 9. Then you'll be checking कि 8 is greater than 9 or not. So it's not, तो हम यहाँ पर 8 से update कर देंगे. So now we have 8, beta की value 8 हो गई. Now you're going up, back up. Maximization की layer है, तो I have the choice between 7 and 8. So I have to update my alpha between 7 and 8. So I will have to pick 8 now over here, क्योंकि 7 से बड़ा है 8. So far हमारी alpha is greater than beta वाली condition अभी तक meet नहीं हो रही है in any of these situations. So we'll keep continuing. तो यहाँ पर आ जाएंगे. So now we have alpha equals to 8 and beta equals to 11. So that is the score that we have so far. And अब मुझे क्या करना है कि alpha equals to 8, beta equals to 11. Same again, beta के लिए मुझे check करना है is 7 less than 11 or not. तो yes, it is less than 11. You'll update this. And now हमारे पास ये वाली condition दोबारा से satisfy हो रही है. तो alpha is greater than 7 right now. So alpha is 8, beta is 7. तो ये वाला जो है हमारा prune हो जाएगा, and you don't have to explore this. And now you have to backtrack again. ठीक है, backtrack अब जब हम कर रहे हैं तो this is the maximization layer. तो maximization layer के अंदर again we have to pick between the values that are available to us. ठीक है, so हमें left side पर 7 and 8 में से choice मिल रही थी, right side पर भी हमारे पास 7 and 8 में से ही choices मिल रही हैं. तो actually alpha की value यहाँ पर update नहीं हो रही, so it's gonna remain as 8. ठीक हो गया. Then minimization वाली layer पर आ जाते हैं. Minimization वाली layer पर मुझे देखना है, तो I have the choice between 8, 11 and 11 over here as well. ठीक है, तो मुझे यहाँ से choices में से I'll have to pick the minimum most value, that is 8. तो what we do now is कि beta को मुझे modify करना है from 11 to 8 because we found a smaller value. So we're backtracking here, right? So यहाँ से भी अब मुझे backtrack करते हुए जाना है. Now this is to update alpha because हम maximization perform कर रहे हैं. So again now I have the choice between 7, another 7 and 8. So I'll pick 8 because हम maximize करना चाह रहे हैं अपनी values को, right? So you'll discard this 7 की value that we had and you'll write alpha equals to 8.
तो दैट इज़ हाउ हमारा अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग वाला एल्गोरिदम वर्क कर रहा है। तो कुछ नोड्स हमारी प्रून हो जाएंगी, कुछ नहीं होंगी बेस्ड ऑन दी कट ऑफ जो भी हमने सेट किया हुआ है। And at the end every node will have a specific weight attached to it. तो basically जब हमारे ट्री को डिसीजन लेना होगा तो it will pick this side because it'll pick the highest value, right? तो वो 8 को पिक करेगा, देन मिनिमम वाला जो भी हमारे पास बेटा के लिए मिनिमम वैल्यू है वो उसको पिक करेगा एंड सो ऑन। तो दैट इज़ हाउ दिस विल बी वर्किंग। So if you have questions about this, now you can ask. मैम Mm-hmm. हमें हमेशा लास्ट में अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है, लेकिन इससे हम मतलब मिलता क्या है, मतलब हमें इसका पर्पस क्या होता है? Okay, so जो हमें लास्ट में अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मिली है दैट इज़ बेसिकली अ स्कोर, राइट? इट्स सिमिलर टू जब हम यहाँ पर स्कोर सीख रहे थे या यहाँ पर स्कोर सीख रहे थे, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द winning chance, you can say. So जब भी हम, because like that's the whole purpose of adversarial search, right? Because I'm trying to win while trying to make my opponent not win at the same time. And तो उसको to in order to win I am also considering कि मेरे opponent के moves क्या होंगे. That's why हमने max and min layers में divide किया हुआ है, right? Because beta is basically the score जो कि मेरा opponent prefer कर रहा है, एंड अल्फ़ा इज़ द स्कोर जो कि हम प्रेफर कर रहे हैं। तो जब भी हम बीटा अपडेट कर रहे थे हम मिनिमम वैल्यू इसलिए पिक कर रहे थे बिकॉज दैट मीन्स के माई अपोनेंट इज़ मोर लाइकली टू पिक दिस मूव। तो बेस्ड ऑन वट एवर माई अपोनेंट इज़ लाइकली टू पिक आई प्रेफर सम मूव ऑफ माई ओन। तो अपोनेंट अगर मुझे हर लेयर पर मिनिमम पिक करके दे रहा है तो बिटवीन दोज मिनिमम्स आई हैव टू पिक द मैक्सिमम दैट आई कैन गेट। दैट इज़ द होल पर्पस बिहाइंड दिस बेसिकली, राइट? तो अल्फ़ा के अंदर जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है दैट इज़ बेसिकली द स्कोर, हाईएस्ट स्कोर दैट आई कैन अचीव अगर मैं लेट्स से राइट वाला पाथ चूज़ करती हूँ। फिर अगर मैंने लेफ़्ट वाला पाथ चूज़ किया तो द स्कोर दैट आई कैन अचीव इज़ 7 नॉट 8। तो मुझे स्कोर मैक्सिमाइज अगर करना है तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि मैं 8 वाले पाथ पर जाऊँ नॉट 7 वाले पाथ पर। मैम ये पुराने वाले एल्गोरिथम की तरह है, लेकिन इसमें बस प्रूनिंग आ जाती है। यस यस, सो दैट इज़ वाई प्रूनिंग के लिए ही हमें वो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज स्टोर करनी पड़ती हैं, क्योंकि we're just looking for that condition ना कि अगर अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा तो हम पार्ट ऑफ द ट्री एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस जब हम मिनीमैक्स को ही डिस्कस कर रहे थे। तो मिनीमैक्स के अंदर हमने कहा था कि लाइक अगर मुझे चेस के लिए एक बनाना है तो बहुत सारी स्टेट्स बन रही होती हैं एंड लाइक स्पेस कम्प्लेक्सिटी बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो विद अल्फा बीटा प्रूनिंग यहाँ पर लाइक हमने कोई सिर्फ 4 नोड्स ही बचाई हैं, बट फॉर अ वेरी बिग ट्री यू माइट बी एबल टू सेव अ होल लॉट ऑफ चाइल्ड नोड्स जो कि ऐसे ही बन रही होंगी जिनका काम नहीं होगा। So this is an optimization for the Minimax algorithm basically. ओके। Mhm. Does anyone else have any questions? Okay, so if you don't have any questions, so we can stop over here. Next class, so probably nahi hogi, right? I would assume. Um, but next class may we'd be starting the next chapter, which is right here.
those logical agents, because हमने adversarial search के अंदर जो भी हमें discuss करना था, we're done with that. We'll be starting the next chapter from the next class जब भी हमारी start होगी. तो let's see कि I highly doubt कि Friday को हमारी class होगी, तो probably फिर Tuesday onwards we'll have this. And also Eid Mubarak in advance, guys. खैर हो अच्छा मिस क्लास की रिकॉर्डिंग की है? Yes, मैंने करी है. मिस डाल दीजिए जल्दी। Yeah, I will.